ویلکم بیک۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا کہ وزیر اعظم کا شریف اللہ کی گرفتاری پر ریاستی رد عمل تھا۔ کل عدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغانستان سے بہتر ہمسائیگی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ بگرام ایئر بیس واپس لینے یا نہ لینے کا معاملہ افغان اور امریکی حکومت کا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان میں رہ جانے والے جدید امریکی فوجی سامان پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار سعودی عرب میں OIC کونسل برائے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر ہو رہا ہے۔ بھارت وزیر مملکت کی آزاد کشمیر واپس لینے کی ہرزہ سرائی افسوسناک ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیریوں کے تحفظات کو اقتصادی بحالی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، پاکستان میں اس کی وجہ سے دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکہ وہ اسلحہ واپس لے گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI اسلام آباد میں 3-4 حملے کر چکی ہے۔ عید کے بعد نئے حملے کی تیاری ہے۔ اس کے بعد تو مفاہمت کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ ایک دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے، تو میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے، تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم ہے۔ جو بھی دار اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں، امریکہ جو ایک بڑا ہائی ٹیک قسم کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ موجودہ صدر ہیں امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسلحے کو واپس وہاں سے منگوائیں گے۔ تو اس سے اس جنگ کی شدت میں جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس میں کامیابی کے امکانات جو ہے بہت بڑھ جائیں گے۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے۔ مزاحمت کی سیاست، مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسری جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا۔ آگے بڑھیں گے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ باقاعدہ سماعت پیر سے ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ عرف جعفر نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کر لیا۔ افغان دہشت گرد ورجینیا کی عدالت میں پیش، داعش کمانڈر کا کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف۔ گرفتار 4 حملاوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ وفاقی جج ولیم پورٹر نے 10 منٹ سماعت کی۔ ملزم کو بتایا گیا الزامات ثابت ہونے پر عمر قید ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے دہشت گرد شریف اللہ نے 2 مارچ کو FBI ایجنٹوں کے سامنے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ سن 2000 میں داعش میں بھرتی ہوا، 2019 سے افغانستان کی جیل میں تھا۔ کابل حملے سے 2 ہفتے پہلے رہا ہوا۔ کل عدم داعش نے موٹر سائیکل فراہم کی، ٹیلی فون خریدنے کے لیے رقم دی اور دیگر دہشت گردوں سے رابطوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ افغان دہشت گرد نے حملہ کرنے والوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت بھی دی۔ ایک حملہ آور کو کابل ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا، دیگر دہشت گردوں کو بتایا راستہ صاف ہے اور خودکش بمبار کو پہچانا نہیں جا سکے گا۔ داعش سرغنہ شریف اللہ اور جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ سن 2024 ماسکو کے قریب کراک سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کیا تھا۔ افغان دہشت گرد گرفتار کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا۔ امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے پہلے خطاب میں داعش کمانڈر کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا اس معاملے میں پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بتایا CIA اور آرمی نے پاکستان کو معلومات فراہم کی جن پر ایکشن لے کر شریف اللہ عرف جعفر کو گرفتار کیا گیا۔ Special thanks to Pakistan indeed. They cooperated with us. Director Radcliffe and others in CENTCOM in the military passing information to the Pakistanis who helped us action it.
We partnered with the Pakistanis based on intelligence we provided. They nabbed him, positively identified him. We've known that for a few days. डायरेक्टर CIA जॉन रैडक्लिफ ने बताया दाइश कमांडर के बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह से मालूमात शेयर की। पाकिस्तान से कहा था सदर ट्रंप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के लिए इस मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। हमारी मालूमात शेयर करने पर पाकिस्तान ने जाफर को जल्द गिरफ्तार किया। Spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order. डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा मुलजिम को कठेरे में ले आए हैं, अपने शराकत दारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाकिस्तानी इदारों ने बलूचिस्तान से मुल्हका पाक अफगान बॉर्डर पर स्पेशल ऑपरेशन करके हिरासत में लिया। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 26 अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। काबुल एयरपोर्ट हमले में 13 अमरीकी फौजियों के साथ 117 अफगान शहरी मारे गए थे। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है, जिसके मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन में 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा भारी असलहे समेत 3 दिन पहले अफगानिस्तान से रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुए। थाई उमूर के माहिरीन कहते हैं अफगानिस्तान के हुक्मरानों को होश नहीं है, उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द भारत की सहूलतकारी से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान को मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना होगा। एक माजरा बन गई है, तमाम दहशतगर्द बड़े आराम से मिल गई है, बल्कि इनकी जन्नत बनी हुई है। इंडिया की फंडिंग के साथ, इंडिया की आर्थिक सहूलतकारी के साथ ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। वो इसमें दाइश में शामिल हो रहे हैं, तालिबान के और कुछ PTP के अंदर आ रहे हैं। ये बड़ी खलबली मची वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज अब बहुत मुनज़्ज़म तरीके से दिल्ली को ऑपरेशन कर रही है। इनकी घेरा तंग किया हुआ है। एक खतरनाक सिचुएशन हुई है। अब पाकिस्तान को एक दोबारा नए टूरिस्ट की जरूरत है। अमेरिका से बात की है, क्योंकि अमेरिकन ट्रंप ने वार्निंग दी है अफगान तालिबान को कि आप हमारा सारा असला वेपन वापस करें, $7 बिलियन छोड़ के आए हैं। कि अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान लीडरशिप भी खामोश है, जैसे इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज दहशतगर्दी में शहादतें हो रही हैं। अफगान तालिबान को इस चीज का एहसास ही नहीं है। अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अब तक दुनिया को हिलाएंगे नहीं, और अफगान तालिबान को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल अगर आप नहीं ठहराते और अमेरिकी सदर बात करे तो दुनिया में पैगाम जाता है। पाकिस्तान की लीडरशिप को भी चाहिए UN में इस मसले को उठाएं। खतरे की घंटी बज गई। दहशतगर्दी के नासूर ने फिर सर उठा लिया। दुआ के साथ दवा भी करना होगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये मुल्क और हमारी बका का मसला है, सबको मिलकर हल निकालना होगा। शेरी रहमान ने यह भी कहा कि अलकायदा को हमने पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया से निकाला था, इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलता। घंटी हमारे लिए बज रही है। अफगानिस्तान और जो दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए तशवीश का भी खास बायस है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से। एक ऐसा दौर गुजरा है जब कोई दिन नहीं गुजरता था कोई ना कोई यहाँ पर अटैक हुआ होता था। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए। हमने अलकायदा को पाकिस्तान से और साउथ एशिया से खाली किया था, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को नहीं मिलता था। अब दैश का फैलाव अफगानिस्तान में 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं। ये पूरे मुल्क का मसला है। दुआ के आगे भी दवा भी करनी होगी। ये हमारी बका का मसला है। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम से मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग मुतासर हो सकते हैं। काबीना अरकान को हिदायत की गई है कि वो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए 12 मार्च तक इन मुल्कों की फहरिस्त पेश करें जहाँ से लोगों के सफ़र पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ذاتی وجوہات پر عہدے سے استعفیٰ دیا۔ وہ 26 نومبر 2016 کو لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے تھے۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ کیس کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ صرف آرمی نہیں پاکستان کے لیے ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا جو جرائم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوں اس میں اپیل ہو سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے دلائل دیے کہ جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا کوئی تصور نہیں، ملٹری ٹرائل میں دستیاب بنیادی حقوق واپس لے لیے جاتے ہیں۔ ملٹری کورٹس جوڈیشل باڈی نہیں۔ سپریم کورٹ کے 2009 کے فیصلے نے مارشل لا اور 2015 کے فیصلے میں ملٹری کورٹس کا راستہ بند کر دیا۔ لاہور میں 1953 میں ہنگامے پھوٹ پڑے تو شہر کی حد تک مارشل لا لگایا گیا۔ ان ہنگاموں کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس بنی۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ حکومت نے 605 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے IMF کو متبادل منصوبہ پیش کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ٹیکس مقدمات جلد نمٹا کر محصولات میں کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ وزیر اعظم نے عدالتوں میں زیر سماعت ٹیکس مقدمات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی ٹیکس مقدمات کی سماعت جلد کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ میں 10 مارچ کو سپر ٹیکس سے متعلق اہم سماعت ہوئی۔ FBR کو سپر ٹیکس کی مد میں 157 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ونڈ فال پروفٹ ٹیکس میں 99 ڈی شک کے تحت 23 ارب روپے کا ٹیکس کیس جیت لیا گیا۔ بینکوں میں ایڈوانس ڈپازٹ ریشو پر ٹیکس کی مد میں 72 ارب روپے کا ٹیکس ملا۔ سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے مسودے پر IMF کے مذاکرات آج ہوں گے۔ سرکاری افسران کے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کے لیے ستمبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا ڈرافٹ IMF کو دیا جائے گا۔ IMF مطالبے پر اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کیا جائے گا۔ سینیٹر اون عباس کی گرفتاری پر اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے وزیر قانون کو رپورٹ پیش کرنے کی رولنگ دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ اون عباس پر بہاولپور میں غیر قانونی شکار کا مقدمہ درج کیا گیا۔ صوبائی حکومت سے بات کریں گے۔ تسلی کی ہے کہ ان کی غیر قانونی گرفتاری تو نہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہمارے پاس اون عباس کے گھر کی فوٹیج ہے۔ گھر کو بری طرح توڑا گیا۔ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے اور کیوں اٹھایا گیا اور کس وقت ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کو کس وقت یہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ PS دراوڑ کا مقدمہ ہے جی، ڈسٹرکٹ بہاولپور کا۔ وائلڈ لائف ریلیٹڈ FIR تھی جس میں وہ مطلوب تھے غیر قانونی شکار کی۔ سر ہمارے پاس اون بپی کے گھر کے اندرون بھی ہمارے پاس فوٹیج ہے۔ اس گھر کو بری طرح سے توڑا گیا ہے۔ پنجاب وائلڈ لائف کی طرف سے چنکارا کے شکار کا استغاثہ تھا 1 مارچ کے حوالے سے، اور اس میں ان کا وارنٹ تھا جس میں جو مجھے انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، وی ول ٹیک اٹ اپ ود دا گورنمنٹ آف پنجاب۔ یہ تسلی کی ہے کہ نمبر 1 کہیں ان کی خدا نخواستہ انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے۔ انہی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی، کوئی ایسی نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے تو یہ کر سکتے تھے اور ان کو فوراً کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے اس ہاؤس کو عزت دینی ہے اپنے کلیگ کو، چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، ان کو اگر ہم نے عزت دینی ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی پریویلیج کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے ڈیسیجنز ابھی چاہیے۔ ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو اون بپی کے ساتھ ہوا ہے۔ جو اون عباس صاحب کی گرفتاری ہے، وہ ایک انوریبل سینیٹر ہے اس ہاؤس کے۔ میری وزیر قانون سے یہ گزارش بھی ہے، آرڈر بھی ہے کہ اس کے معاملے پہ آپ مفصل کوئی رپورٹ پیش کریں تاکہ اس کی کارروائی آگے بڑھائے، تاکہ ان کی پارٹی اور اپوزیشن والے مطمئن۔ اون عباس کی گرفتاری پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور منظور کاکڑ میں نوک جھونک چلتی رہی۔ سینیٹر منظور کاکڑ نے کہا آپ بھی ہماری طرح سینیٹر ہیں، ہاتھ نیچے کر کے بات کریں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے کہا اس لیے زبردستی ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا ہوں۔ منظور کاکڑ نے جواب دیا آپ ہاتھ نیچے رکھیں گے تو میں گھٹنوں پر رکھ کر بات کروں گا۔ میں
साहब ये मुनासिब बात नहीं है, गलत बात है। एक मोअज़्ज़िज़ सेनेटर इस हैवान का आप उसकी जो है ना तस्लील कर रहे हैं। हुकूमत का ये रवैया ठीक नहीं है सर। मैंने हाथ जबरदस्ती नीचे रखे हुए क्योंकि आपने कहा आपने हाथ नहीं उठा। आपकी मेहरबानी है सर, अगर आप मेरा रोजा है रखेंगे आपने मेरे तो मैं घुटनों पे हाथ रखूंगा सर। हम आप हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे अगर आपके हाथ नीचे होंगे। मुंह पे रोजा है, हाथ मेरे बंदा है। नहीं सर, कोई मसला नहीं, मुंह से आप जितना बोल सकते हैं बोले सर, दिन सब पे आएंगे सर, लेकिन ना करे सर खुदा के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एमियो अस्पताल लाहौर के MS को झाड़ पे ला दिया। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। MS को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं? आपको तो नौकरी से फारिग कर देना चाहिए। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश हुए। आइंदा समाअत 25 मार्च को होगी। वज़ीर आला KP ने मुझे 3 दिन पहले एक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने उस किताब को नहीं पढ़ा। किताब के पहले पेज पर KP हुकूमत ने मीडिया एंगेजमेंट को अपनी कारकर्दगी जाहिर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज के दस्तक प्रोग्राम की नकल में इख्तियार पोर्टल बनाया गया। PTI रहनुमा जुनेद अकबर का कहना है, फजल रहमान को हमारी और हमें उनकी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं। बानी PTI तक दोनों जमातों का मौक़िफ़ पहुँचाएंगे। हमारी मौलाना साहब ये हकीकत है कि उसे हम हमारी पार्टी से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारी उसकी पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो मौलाना साहब को पहुँचाएँ। हमारी ये कोशिश थी कि सारे जो है अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठे साथ मिला जिस तरह जो है हम ज़ाहिमत की सियासत करने नहीं चाहते, हमें मुज़ाहमत पे मजबूर किया जा रहा है। हम पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग पे यकीन करते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे यकीन करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैस है नहीं और अरबों रुपए का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं। गैस फराहम नहीं करना थी तो शेड्यूल का ऐलान क्यों किया था? कराची में पानी की फराहमी के लिए हब कैनाल पर काम कर रहे हैं। अगस्त से पानी की फराहमी में इजाफा हो जाएगा। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुखालफिन पर जवाबी वार कर दिया। कहा, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जो मुल्क बनाते हैं वही चला सकते हैं, जिन्होंने मुल्क बनाया था वही चलाकर दिखाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी का इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, दूसरे सूबों से 3 जजेस जो है वो ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और उनके साथ जो स्टाफ था उस पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी का इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खास खत में कहा गया है कि इंक्वायरी करके मुलविस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस और तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भी काफी अरसाल कर दी गई है। खत में लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस गुज़श्ता 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जो बाबर सत्तार की सेक्रेटरी हैं उन्होंने मजीद लिखा कि मेरे इल्म में लाया गया कि कोर्ट स्टाफ रिलीफ लेने वाले साइदीन गोपला का पीछा करके रकम का मुतालबा करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस से सर उठाना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के मुस्तकिल मुलाजमीन अपने सर्विसेज के एवज तनख्वाहें मुराद वसूल करते हैं और हाई कोर्ट मुलाजिम का रिलीफ हासिल करने वाले किसी साइड या वकील से रकम का मुतालबा करना मिसकंडक्ट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान में खून की एहतियात की कमी का सामना। मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा अनवर। रमज़ान के पहले शब के दौरान मुल्क भर के अंदर खून के एहतियात की कमी का सामना है। बिलखुसूस अगर देखा जाएगा तो
मुल्क भर के अंदर 1 लाख से ज़ायद थैलेसीमिया के अफराद हैं जिनको माहाना तकरीबन 1 से 1.5 लाख खून की बोतलों के बैग की जरूरत होती है, जबकि मुल्क भर के अंदर सालाना बुनियादों के ऊपर 18 लाख से ज़ायद खून की एहतियात की जरूरत होती है ब्लड बैंक की। ताहम ये तमाम की चीज़ें शॉर्ट हो शिकायत थैलेसीमिया, होमोफिलिया, प्लास्टिक एनीमा, ब्लड कैंसर, डेंगू मरीज के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इस वक्त संगीन खतरात का सामना है। बाल बच्चों को 15 से 20 दिन के दौरान 2 से 7 मरतबा खून के एहतियात फराहम किए जाते हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी जो माहिर खून अतफाल है, उनका कहना यह है कि जामियात और कॉलेजों के तलबा तालिबात के अलावा शहरियों की बड़ी अक्सरियत के जहन के अंदर एक फिक्र है कि वो माह रमजान के अंदर खून के एहतियात देने से गुजर करते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि माह रमजान में अफ्तार के बाद खून के एहतियात जमा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत ने इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडो 25 में शिरकत की। मशकों में 38 ममालिक की बहरी अफवाज शरीक थीं। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की बैनुल-अक़वामी मश्क में फ़ाल शिरकत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का मज़हर है। मश्क का आगाज़ फ्लीट रिव्यू से हुआ। PNS असलत ने दीगर जंगी जहाज़ों के साथ बाहमी ताउन और बहरी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। PNS असलत ने श्रीलंका का भी दौरा किया। कमांडिंग अफसर PNS असलत ने कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुकाम से मुलाकातें की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द ने चीफ जस्टिस को पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते के फुकदान के मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने वफ्द को कानून और इंसाफ कमीशन के आइंदा इजलास और वफाकी अदालती अकेडमी के तहत तरबियती प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कानूनी बरादरी के साथ रवाबित को अपनी तरजीह करार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। भारतीय टीम मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। न्यूजीलैंड को सिर्फ एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में होगा। फ्यूचर टूर प्रोग्राम से हटकर पाक बांग्लादेश व्हाइट बॉल सीरीज प्लान कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के सदर फारूक अहमद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों बोर्ड जल्द सीरीज का ऐलान करेंगे। Welcome Farooq bhai to Pakistan. We are discussing for the last several weeks some series also which both boards will be announcing it very soon. In good terms since I became the president. Very happy to be here. Hopefully we can improve the relationship. He's trying to accommodate us few one day or maybe T20 games. Thanks again to Mohsin bhai. साबिक क्रिकेटर बास्तर तरीका बाबर आजम को मशवरा। कहा बैटिंग में बेहतरी लाने के लिए अपना स्टांस ठीक करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड की जीत का क्रेडिट रचिन रविंद्रा को जाता है। कामरान अकमल बोले अब ऐसे खिलाड़ी टीम में लाने होंगे जो आते ही परफॉर्म करें। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 मैच खिलाकर सिर्फ प्लेयर्स को सिखाया जाए। फुल क्रेडिट देना चाहिए रचिन रविंद्रा को और केन विलियमसन। 164 रन की पार्टनरशिप जो लगी है वहाँ से वो मोमेंटम बना। उस जैसी बॉलिंग का नाम है, जैसी रेपुटेशन है, मेरे ख्याल से उतनी बुरी बॉलिंग की है। साइम का आपने बोला, साइम टेक्निकली इतना साउंड थोड़ी है। Of course. जितना रविंद्रा साउंड है, अगर आप इसकी टेक्निक देखें, इतना ये अपराइट खेलता है। इसका स्टांस आप देखें, हमारे बाबर की तरह नहीं खुला हुआ। हाइट मेरे ख्याल है दोनों की बराबर होगी। सनी भाई ने भी ये बात बोली कि बाबर को अपना स्टांस थोड़ा सा कम करना चाहिए। जितना वो अपराइट खेलेगा उसके बैट पे बॉल ज्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत के वो बॉल पे जा रहा है। वो नहीं समझते मेरे ख्याल है, वो ज्यादा क्रिकेट जानते हैं। फ्रंट फुट पे कट भी मारता है, पुल भी मारता है, ड्राइव भी मारता है। ICC इवेंट बिलोंग टू रचिन रविंद्रा। बाबर आप देखें कि अर्ली ऑन इतना शेकी खेल रहा होता है, इतनी मूवमेंट होती है, उसको पता नहीं चल रहा बॉल कहाँ पे, जिसकी वजह से क्रॉस भी खेलता है, लेग भी फर हो जाता है। प्रॉब्लम आ रही है कि हम सोचते हैं पाकिस्तान टीम में आगे पहले वो 30 मैच खेले, वो सीखे, मौका दें। अब वो टाइम गुजर गया। हमें अब पाकिस्तान टीम को अगर ऊपर लेके जाना है, इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। वो उसी सूरत आएंगे जब आप मेरिट के साथ सिलेक्शन करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।